Hello everyone, welcome back to my channel Edu to Fly. In this video, we will study the capital structure theories, third part of the capital structure theories, the traditional approach. We have already covered the net income approach and the net operating income approach, which were the theory of relevance and theory of irrelevance respectively. So in this video, we are going to study the traditional approach. So traditional approach is basically the extended form of net income approach. That means this is the theory of relevance. This is the theory of relevance. It says that the capital structure has an impact on the value of the firm. This is the theory of relevance. So this is the extended form of the net income approach. Net income approach की अगर हम बात करें, that only talks about the effect of leverage or effect of debt on the value of the firm. We studied this much now. What we studied was capital KD was constant, KE was constant, KE was more than KD, and as we increase the proportion of debt, as we increase the proportion of debt, the overall cost of capital declines. This is what we studied in net income approach. So the net income approach that basically talks about the effect of leverage on the cost of capital. Okay, it does not suggest us the optimal capital structure. What is optimal capital structure? It is that combination of debt and equity which maximizes the wealth of the shareholders. So that optimal means the best. Okay, that one combination which maximizes the wealth of the shareholders. And we have studied that the wealth of the shareholders has to be maximized as a financial goal. We have studied two goals of the financial management. One was the profit maximization and another was the wealth maximization. ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, so go and check out this video from the financial management playlist. It is available and I will also ping the link below. So ताकि मैक्सिमाइज हो सके शेयर होल्डर्स की वेल्थ, तो हमें एक कॉम्बिनेशन पता करना है डेट एंड इक्विटी का. व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन? ट्रेडिशनल अप्रोच हमें ये कॉम्बिनेशन बताता है. Traditional approach to capital structure and valuation assumes that there is an optimal capital structure. So इस अप्रोच में क्या बोला जाता है कि एज्यूम किया जाता है कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है and the management can increase the value of the firm by this judicious use of the financial leverage and just judicious use of the capital structure. तो अब हम इसकी assumptions देख लेते हैं. तो first of all, first assumption is the initially cost of debt is lower than the cost of equity. The cost of debt is lower than the cost of equity. So this is the first assumption. Next is the excessive use of debt capital leads to financial risk. Yes, जितना आप debt capital use करोगे उतना ही इक्विटी वालों का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा. अब फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि भाई हम अपनी जो डेट कमिटमेंट्स हैं वो मीट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगर हम ज्यादा ही डेट ले लेते हैं तो उस पे हमें इंटरेस्ट भी देना होता है, हमें डेट को रिटर्न भी करना होता है उसका अमाउंट. सो जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा बर्डन भी होगा, जिसकी वजह से फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी खतरे में आ जाते हैं. उनको भी रिस्क होता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, दे आर रेजिडुअल ओनर्स. जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो पहले डेट ओनर्स को जाएगा. तो अगर तुम ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ डेट लोगे तो ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट भी डेट वालों को जाएगा. तो इनका तो रिस्क बढ़ गया ना, इन्होंने भी तो पैसे लगाए हैं ना कंपनी में, इनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है. तो इनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है, तो हमने एनओआई अप्रोच में पढ़ा था अगर इनका रिस्क इंक्रीज होगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनको भी तो कॉम्पेंसेशन चाहिए ना फिर उसके लिए. फिर है थर्ड assumption which is initially the cost of debt and the equity both remain constant. So यहाँ पे इन्होंने assume किया है कि initially तो KD और KE constant रहेंगे, लेकिन एक particular leverage ratio के बाद दोनों के दोनों increase हो जाएंगे. So अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम आपको देखना है लिवरेज रेशियो वाला. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है KD, KE एंड WACC. एंड यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे 3 स्टेजेस वी हैव टू स्टडी. फर्स्ट स्टेज में आप देखोगे KD एंड KE आर रिलेटिवली कांस्टेंट. सो एनआई अप्रोच का एक्सटेंडेड फॉर्म ही तो है. एनआई अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था
KD कांस्टेंट, KE कांस्टेंट, एंड जो KO है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट? ठीक है, जितना डेट प्रपोर्शन में यूज करूंगी उतना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन ज्यादा यूज करोगे जब डेट का, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको जो है ये रिस्क एरिया में आ जाते हैं, इनको कॉम्पेंसेट करना है हमें। ठीक है, तो इनको कॉम्पेंसेट में कैसे करूंगी? बाय ऑफसेटिंग कॉम्पेंसेशन देके। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक पॉइंट के बाद इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज जहां पे WACC जो है वो लोएस्ट है। ठीक है, सारी कॉस्ट जो है वो लोएस्ट है, एंड इसके पॉइंट के बाद थर्ड स्टेज में दीज ऑल थ्री विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा? इस एक्स पॉइंट पे। ठीक है, ये वाला जो है ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलली वैल्यू ऑफ द फर्म का ग्राफ है। जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है। जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे अपने लोएस्ट पॉइंट पे आती है, वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना शुरू होगी, द वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी डिक्रीजिंग। सो ये भी हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस है। तो ये तीन स्टेजेस हमें ध्यान से देखने हैं। तो ये वाला जो स्टेज है यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम है, तो यही ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो यही था इस थ्योरी में, दैट्स इट। So thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.